See, we are going to discuss about the cleavage, and already we studied about the cleavage. In this lecture, we are going to study the comparative analysis of cleavage and some other concepts which we have not discussed, right, in the class. So first of all, you must understand what is cleavage. Cleavage is a process between fertilization and gastrulation. Right? It is a process between fertilization and gastrulation where cell size is nearly same. Right? So see, this is the structure of cleavage. Fertilize egg and see here how cleavage is going on. Right? First of all, you must understand during cells division there are phase, that is G1 phase, S phase, G2 phase, and M phase. And here, which phase? S phase is DNA synthesis, G1 phase and G2 phase for protein synthesis. So what is happening during cleavage? Only there will be S phase. G1 phase and G2 phase very less or not, right? So DNA synthesis is happening, but very less or no translation and transcription and translation happening. Means protein synthesis is very less or no, but they are continuous DNA synthesis. And see here, egg, if there is a division. Here it is passing through central vertically. Already we discussed. This is meridional. If this is passing vertically but not through central, then this is vertical. If this is passing horizontally and through central, this is equatorial. And if it is passing horizontally but above and below the center, this is latitudinal. So already we discussed. Here what is different type of cleavage? You must remember. See, first bilateral. See, bilateral cleavage. Bilateral cleavage means if through vertical plane and it is passing through central, and if you fold, it will be mirror image. Right? Then this type of cleavage is bilateral cleavage. Second one is radial cleavage. If from any side it is passing through center, it will form mirror image. Right? Not only vertical, any side. See here, this is radial cleavage. Right? और स्पाइरल क्लीवेज तुम लोगों ने देखा है ना कॉपी में किस तरह से स्पाइरल होता है. If cleavage like this, a spiral, then that is a spiral cleavage. So see, what is cleavage? Cleavage is a rapid series of mitotic division that occur just after fertilization. And there are two critical reasons why cleavage is so important. First one, generation of large number of cells that can undergo differentiation and gastrulation to form organ. And second one, increase in nucleus and cytoplasmic ratio. Eggs needs a lot of cytoplasm to support embryogenesis. It is difficult or impossible for one nucleus to support a huge cytoplasm. Anocytes are one of the largest cells that exist. One small nucleus just cannot transcribe enough RNA to meet the needs of huge cytoplasm. A large nucleus to cytoplasm ratio is optimal for cell function, and cell division occurs rapidly after fertilization to correct this problem. And cleavage differs from normal mitosis in two respects. First one, that blastomeres do not grow inside between successive cell division, as they do in most cells. What is happening? That जैसे माइटोटिक डिवीजन होता है तो डिवीजन होने के बाद सेल साइज सेल का साइज बढ़ भी जाता है, लेकिन इसमें सेल का साइज जो है ब्लास्टोमर का साइज बढ़ता नहीं है क्लीवेज में. राइट? एंड दिस लीड्स टू रैपिड इंक्रीज इन न्यूक्लियस cytoplasmic ratio. Cell undergo cleavage having mainly S and M phase of the cell cycle. Little or no G1 or G2 phase. Protein synthesis नहीं होता है. That's why there is no need of G1 and G2 phase.
Okay, cleavage occurs very rapidly, and mitosis and cytokinesis in each round of cell division are complete within an hour. In case of lower animal, right? In case of mammal, टाइमिंग क्लीवेज का थोड़ा सा ज्यादा होता है. बताया था तुम लोगों को फर्स्ट क्लीवेज में 30-36 आवर्स लगता है, राइट? लेकिन छोटे एनिमल में जल्दी फास्टली जो है वो क्लीवेज होता है, राइट? क्लीवेज typical somatic cell divide much more slowly, several hours a day, and even the fastest cancer cell divide much slower than occurs in zygote during cleavage. Cleavage differs in different types of egg. The presence of large amount of yolk alter the cleavage pattern, leading to incomplete cleavage that can like by bird and reptile. Two areas of interest. First one, that how the process of cleavage differ in different organisms and what mechanism regulate cleavage. So first one तो पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा डेप्थ में जाने पर जब एनिमल को पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा. लेकिन जो है डिफरेंट एनिमल में जो क्लीवेज पैटर्न क्या है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस यहां हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. उसके पहले यू मस्ट नो जो एग होता है वो एग योग के आधार पर बांटा गया है, योग किस तरह से जो है प्रेजेंट है उसके आधार पर जो है वो क्लीवेज ये तुमको एग को बांटा गया है. पहला जो है आइसोलेसिथल एग. आइसोलेसिथल एग में क्या होता है, ये आइसो का मतलब इक्वल, हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योग दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म. पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा योग है और वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेसिथल. और वो पाया जाता है किसमें, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाया जाता है. आइसोलेसिथल इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, राइट? सेकंड वन दैट इज मेसोलेसिथल. मेसो का मतलब होता है मिडिल. So have a moderate amount of yolk, and yolk is produced mainly in vegetal hemisphere. Animal hemisphere में नहीं, vegetal hemisphere side में होगा, उसको mesolecithal कहा जाता है. और ये एक जो है amphibian में mainly mesolecithal एक पाया जाता है. So ये पूछता है क्वेश्चन, so must know, right? Then telolecital. Telo का मतलब होता है in. So have a large amount of yolk that fills the cytoplasm except for a small area near the animal. पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में जो है वो योग होगा, लेकिन थोड़ा सा जो एनिमल पोल का एरिया होगा जो टेल होगा वहां जो है वो नहीं होगा. तो ये तुमको टेलोलेसिथल कहलाता है. टेलियोस का मतलब ये होता है इंट पॉइंट पर जो है नहीं होगा. इसका एग्जांपल तुमको जो है वो है फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स. बर्ड्स में देखते हो कैसे ब्लास्टोडिस्क ऊपर बना होता है, राइट? और तो टेलोलेसिथल एक का एग्जांपल. And then centrolecithal egg have a lot of yolk that is concentrated within the center of the cell. And example है are insects and arthropods. अब देखो ये जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है वो भी डिफरेंट होता है. ये भी खूब पूछता है क्वेश्चन, इसको एग्जांपल के साथ तुम्हें याद रखना है. जैसे एक कहलाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज. तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये किस में पाया जाता है, आइसोलेसिथल एग में पाया जाता है. आइसोलेसिथल एग में पाया जाता है ओकर्स इन आइसोलेसिथल एग्स. द एंटायर एग इज क्लीव्ड ड्यूरिंग इट्स डिवीजन. होलो का मतलब पूरा, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब पूरा का पूरा क्लीवेज. और ये पाया जाएगा किसमें, आइसोलेसिथल एग में. जैसे एग्जांपल इसका मैमल्स और सी एस में. क्लियर? दूसरा मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. Meroblast cleavage occurs when egg have a lot of yolk. The egg doesn't divide completely at each division. मतलब मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में होता क्या है कि योग का कंसंट्रेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है. और जब योग का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा. तो जो डिवीजन हो रहा होगा, क्लीवेज हो रहा होगा, तो कहीं पर फास्ट होगा कहीं पर स्लो होगा. और इस तरह के क्लीवेज को मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, राइट? इस तरह के. और ये मेरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो दो तरह से बांटा गया है. एक को डिस्कोइडल और दूसरे को सुपरफिशियल कहते हैं. डिस्कोइडल का मतलब डिस्कोइडल में डिस्क ऊपर, तो डिस्कोइडल का एग्जांपल देखो. डिस्कोइडल क्लीवेज इज लिमिटेड टू स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल. एट all the yolk filled cytoplasm fails to cleave. Characteristic of telolecital eggs such as birds. Birds का एग्जांपल याद करो, पूछा जाता है. बर्ड्स में कौन सा क्लीवेज होता है, मेरोब्लास्टिक डिस्कोइडल. बर्ड्स में कौन सा क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक डिस्कोइडल. ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज.
ओके, सेकंड सुपरफिशियल क्लीवेज देखो। सुपरफिशियल देखो, ये मेरोब्लास्टिक क्लीवेज का दूसरा पार्ट है सुपरफिशियल क्लीवेज। ये लिमिटेड टू थिन सरफेस ऑफ एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट occurs the entire egg, the inside the egg that is filled with yolk fails to cleave। इसका एग्जांपल तुम्हारा इंसेक्ट्स है, राइट। सुपरफिशियल क्लीवेज का एग्जांपल इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स में जैसे ड्रोसोफिला है, अभी सबका फिगर आएगा, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड, राइट। सो अगर कोई पूछे कि इंसेक्ट्स में किस तरह का क्लीवेज होता है, तो मेरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज कहना होगा तुम्हें, मेरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज। अब देखो एक एग्जांपल है, फोटोग्राफ से समझना जरूरी है। आइसोलेसिथल एग, सी हियर, yolk is less and throughout the egg, that is isolacetal। see, mesolacetal yolk is available and that is in the vegetal pole। see, then telolacetal yolk available and the entire cell except tail side, right। centrolacetal egg is available and more in the central, that is centrolacetal egg, right। so आइसोलेसिथल में कौन सा होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब पूरा का पूरा क्लीवेज सेम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां यॉक जो है कम होता है और थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जांपल। और वो फाइनली जाके ब्लास्टोसिल और बनता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जांपल यहाँ सी दिखाया हुआ है। ह्यूमन मैमल भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। दूसरा देखो मेसोलेसिथल एग्स में, मेसोलेसिथल एग्स में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ। अब इसमें जो है होता क्या है, ऊपर साइड क्लीवेज पैटर्न दूसरा है, नीचे साइड क्लीवेज पैटर्न दूसरा है, इसलिए देखो वो इक्वल नहीं है। यहाँ 8 सेल बना इक्वल नहीं है। एनिमल पोल पे छोटा है और वेजिटल पोल पे बड़ा है। और ये फाइनली जो है ब्लास्टोसिल बनता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग में, जब हम लोग गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे होंगे और आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे। एग्जांपल मेसोलेसिथल एग का फ्रॉग है। सो मेसोलेसिथल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन फ्रॉग, राइट। देन थर्ड टेलोलेसिथल। टेलोलेसिथल में याद करो बर्ड्स वाला, इस फिगर को देखो, देयर इज ए स्मॉल ब्लास्टोडिस्क, और ब्लास्टोडिस्क में ही जो है वो डिवीजन हो रहा है। और वो डिवीजन आके देखो ब्लास्टोसेल्स बनाया, पहले हाइपोब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट लेयर बनाया और बीच में ब्लास्टोसिल बना, और ये जो है बर्ड्स में पाया जाता है। सो टेलोलेसिथल एग, राइट, मेरोब्लास्टिक डिस्कोइडल क्लीवेज इन द केस ऑफ बर्ड्स। Then fourth one that is centrolacetal egg, and centrolacetal egg जो है देखो क्या हुआ, सेंटर में योक है, राइट, सेंटर में योक है, दैट इज centrolacetal egg। डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद वो सरफेस के पास जाके फिर ये होता है, देखो दैट्स व्हाई सुपरफिशियल सरफेस साइड में जाता है और देन जाके वो अलग अलग सेल होता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सुपरफिशियल क्लीवेज। सो दिस इज centrolacetal एक और सुपरफिशियल क्लीवेज इन केस ऑफ इंसेक्ट। इस स्लाइड को जरूर याद रखना, एग्जांपल जरूर याद रखना, खूब क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राइट। अब यहां देखो सी अर्चिन का जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखो आइसोलेसिथल स्फीयर इवन डिस्ट्रीब्यूलियो यो, फर्स्ट क्लीवेज क्या हुआ, मेरिडोनल। यहां देखो ये दिस फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनल, राइट। सो दिस C2 second cleavage is also meridional but perpendicular to first axis. See here, perpendicular to first axis. So see here 4. Third cleavage is equatorial in case of C here. See here equatorial. So see formation of 8 cells, but here size same, right? So in case of C archie, see that this is happening, राइट। इसी चीज को देखो, अब जब एक सेल वहां बन गया तो एक सेल एनिमल हाफ हो गया, वेजिटल हाफ हो गया, और उसके बाद मेजोमर्स, माइक्रोमर्स, एनिमल पोल और एनिमल पोल N1 N2 वेज1 वेज2 बनता है, माइक्रोमर मेजोमर्स बनता है, वो किताब में देखोगे। लेकिन इन्हें इसमें तुमको 3 क्लीवेज तक याद रखना है। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनल, सेकंड क्लीवेज मेरिडोनल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट क्लीवेज, एंड थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल, एंड दिस वे सी हियर there is formation of 8 cells, and finally 128 cell formation here for the blastula, clear। and ये और याद रखा आइसो रेडियल क्लीवेज जो है काइनोडर्म्स और एम्फिओक्सस में होता है, ये कभी क्वेश्चन पूछता है। अब एक के केस में देखो
एक उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनल, यहां देखो सेकेंड क्लीवेज आल्सो मेरिडोनल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट मेरिडोनल क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज इज नॉट इक्वेटोरियल, third cleavage is latitudinal because it is shifted toward the animal pole. See here, and thus there is a formation of blastose. Then see there is a difference, comparative difference between the sea urchin and yolk. See here, egg, grey crescent, animal pole, vegetal pole, first meridional. Here also first meridional, but remember grey crescent very important. अगर ग्रे क्रेसेंट नहीं होगा फ्रॉग में तो फिर वो मतलब नहीं है कोई क्लीवेज का, बनेगा नहीं एनिमल, राइट। जिस पार्ट में ग्रे क्रेसेंट होगा वही फर्दर डिवीजन हो जाता है। मैकेनिस्टिक अप्रोच बोले हैं नेक्स्ट क्लास में जब डिटेल पढ़ाया जा रहा होगा तो क्यों ग्रे क्रेसेंट जरूरी है डिस्कस करेंगे। बट ये एट दिस टाइम यू मस्ट हैव in your memory that gray crescent is very important for further division. Gray crescent नहीं हुआ तो further division नहीं आएगा। तो दोनों में देखो क्या हो रहा है, मेरिडोनल क्लीवेज नियरली सेम। सेकेंड क्लीवेज में मेरिडोनल हुआ परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एक्सिस, राइट। एंड थर्ड क्लीवेज में देखो इसमें इक्वेटोरियल हो गया बट इसमें इक्वेटोरियल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हियर अप टू 8 सेल स्टेज सब सेल का साइज जो है सेम है, लेकिन यहाँ एनिमल पोल में थोड़ा छोटा है और वेजिटल पोल में थोड़ा बड़ा है। तो ये तुमको कंपैरेटिव याद रखना है सी अर्चिन और फ्रॉग का। फर्दर ये बर्ड्स का केस है। बर्ड्स के केस में तुम्हें पता है कि ये ऊपर में क्या है ब्लास्टो, देखो ये पूरा का पूरा योक है और ऊपर में ये ब्लास्टो डिस्क है, राइट। और ब्लास्टो डिस्क में ही क्लीवेज होना शुरू करता है। पहला जो है वो क्लीवेज होता है मेरिडोनल और उसके परपेंडिकुलर ये सेकंड क्लीवेज होता है। एंड देन सी हियर एंड देन क्लीवेज हुआ और फाइनली जो है हाइपोब्लास्ट बनता है। ये जो है क्लियर अलग आता है, ईपी ब्लास्ट ऊपर और बी पे ब्लास्टोसिल बनता है, राइट। इसको बेहतर देखने के लिए ये पढ़ा है हमने। ऊपर वाला एरिया जो है वो एरिया पॉलिसुडा जिसमें योग है दैट इज एरिया ओपाटा और दोनों का जो ज्वाइन है दैट इज मार्जिनल जोन, राइट। अब देखो यहीं पर क्लीवेज होना शुरू हुआ। क्लीवेज किसमें शुरू हुआ, एरिया पॉलिसुडा में क्लीवेज शुरू हुआ। क्लीवेज देखो और इसको कट करके यहां दिखाएं, ये तुम्हारा फॉर्मिंग सेल है, ये तुम्हारा कौन सा सेल है, ईपी ब्लास्ट सेल है। और यही ईपी ब्लास्ट सेल जो है हाइपोब्लास्ट सेल बनाता है और बीच वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिल कहलाता है, राइट। अब देखो ये मेरोब्लास्टिक क्लीवेज है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें पाया जाता है, अभी बताया ड्रोसोफिला में। अब ड्रोसोफिला में देखो यहां न्यूक्लियस एक है। अब ये जो है डिवीजन हुआ, बहुत सारा न्यूक्लियस बना, राइट। ये बहुत सारा न्यूक्लियस कहां गया, सरफेस साइट जाने के बाद डिवीजन हुआ, यहाँ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एग, राइट। तो ये चूंकि सुपरफिशियल साइड में हो रहा है क्लीवेज, दैट्स व्हाई दिस क्लीवेज इज नोन एज सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज, क्लियर। अब ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देख लो कि जैसे टेलोलेसिटल का दो, ये बाइलैटरल और डिस्कोइडल और सेंट्रोलेसिटल। अब देखो सेंट्रल टेलोलेसिटल और सेंट्रोलेसिटल, इसमें बाइलैटरल और ये डिस्कोइडल। बाइलैटरल का एग्जांपल ये है तुम्हारा कौन वाला, ये टेलो बाइलैटरल एग्जांपल ये किस में पाया जाता है, अभी बताया ना बाइलैटरल का एग्जांपल अभी बताया तुमको, सेफलोइड एंड मोलस्क, सेफलोइड मोलस्क में पाया जाता है। ये देखो ये डिवीजन है। और वो डिस्कोइडल का मतलब क्या हुआ, डिस्क से, राइट। और डिस्कोइडल की जो बर्ड्स वाला जो बताया था उसका एग्जांपल ये, राइट। जबकि सेंट्रोलेसिटल जो है जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में, ड्रोसोफिला में ये एग्जांपल है, राइट। डिफरेंस क्या है, तुमको जो ये सुपरफिशियल क्लीवेज हो रहा है इसमें क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेंटर में गया, बीच में गया, फिर न्यूक्लियस सरफेस की तरफ जाता है और फर्दर उसके बाद उसमें जो है फर्दर सेल्स बनते हैं, राइट। क्योंकि ये
सरफेस साइड में हुआ इसलिए सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। जबकि यहां पर जो है डिस्कोइडल क्लीवेज है, डिस्कोइडल क्लीवेज में क्या हुआ, ऊपर तुम्हारा जो है एक डिस्क शेप है, राइट, वहां क्लीवेज हुआ, और फर्दर उससे जो है इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और भी चीजें पढ़ोगे बना, इसको कहते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। और वो ऊपर में बाइलेटरल, वो डिस्कोइडल क्लीवेज ये भी एक तरह से मेरोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जांपल है, बट वो बाइलेटरल इसलिए है क्योंकि उसका क्लीवेज जो होता है ना, फाइनली सिमेट्री जो है वो अगर एक ही एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू जाऊंगा और एक ही एक्सिस होगा, एक ही एक्सिस होगा जिससे वो मिरर इमेज बनाएगा, राइट। तो इसका तो हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ बोला, लेकिन शायद कभी पूछा होगा क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको फिगर डाल दिया। तो रिमेंबर दैट सिफेलोपोड बोलस में तुम्हारा टेलोलिसिथल जो है ये होता है, क्लीवेज होता है, याद रहेगा। टेलोलिसिथल एज है, इसमें जो है बाइलेटरल क्लीवेज होता है। आई थिंक लास्ट क्लास, राइट। सो इन दिस वे